Good morning, students. As we all know that we are passing through this tough time, but we must fight against it together, follow the guidelines and be courageous. Okay, children? As you all know that my name is Payal Acharya and I am taking your English text. Okay? Now today I am going to explain all the exercises of lesson number 2, A Lost Button. So listen to me very carefully. Now, question number 1, hard words. Children, you have to write these hard words in your classwork for 2 times. Okay? And read these hard words very loudly in front of your parents. Okay, children? Like this. T-O-A-D, toad. T-O-A-D, toad. H-U-R-T, heart. H-U-R-T, heart. W-O-O-D-S, woods. W-O-O-D-S, woods. W-O-R-R-Y, worry. W-O-R-R-Y, worry. E-X-C-U-S-E-M-E, excuse me. E-X-C-U-S-E-M-E, excuse me. S-H-O-U-T-E-D, shouted. S-H-O-U-T-E-D, shouted. S-L-A-M-M-E-D, slammed. S-L-A-M-M-E-D, slammed. T-R-O-U-B-L-E-D, troubled. T-R-O-U-B-L-E-D, troubled. T-H-O-U-G-H-T, thought. T-H-O-U-G-H-T, thought. S-E-W-E-D, sued. S-E-W-E-D, sued. Okay, children? So, read these hard words very loudly in front of your parents. Okay, if you read these hard words properly, you can read your chapter easily. Okay, children? Now, question number 2, give meaning. First, sewed, stitched. Sewed, stitched. Worry, concern. Worry, concern. Suddenly, immediately. Suddenly, immediately. Woods, land which is full of trees. Woods, land which is full of trees. See children, sewed, that means stitch. अगर आपके शर्ट का बटन टूट जाता है तो मम्मा उसको क्या करके देती है? स्टिच करके देती है. ओके, देन वरी. वरी मतलब कंसर्न. आप स्कूल जाते हो तो मम्मा आपकी वाटर बॉटल, लंच बॉक्स का कितना ध्यान रखती है, वो आपकी वरी करती है. दैट मीन्स आपका कंसर्न करती है. ओके, सडनली, इमीडिएटली. दैट मीन्स सडनली आई गॉट एन आइडिया. जैसे मेरे दिमाग में अभी से एक आइडिया आया, अचानक. तो उसको क्या बोलते हैं? सडनली. ओके, देन वुड्स. वुड्स, लैंड विच इज फुल ऑफ ट्रीज. लैंड मतलब जमीन, ये तो आपको पता ही है. वो जमीन जिसके चारों ओर फुल ऑफ ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अपोजिट. फर्स्ट, लॉस्ट, फाउंड. लॉस्ट, फाउंड. thin, thick. Thin, thick. Angrily, calmly. Angrily, calmly. Took, gave. Took, gave. Covered, uncovered. Covered, uncovered. See students, lost that means खो गया, और found मतलब मिल गया. इट्स ऑपोजिट, मतलब मैं जो बोलूँ उसका आपको उल्टा बोलना है. जैसे मैं बोलूँ यस तो आप बोलोगे नो. तो हियर भी ऐसा ही है. लॉस्ट मतलब खो गया, फाउंड मतलब मिल गया. सेकंड नंबर, थिन, पतला, एंड थिक, मोटा. थर्ड नंबर, एंग्रीली, मतलब गुस्सा होना, और कामली मतलब शांति से. टुक, टूक मतलब लेना, एंड गेव मतलब देना. टूक क्या है? इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ टेक, एंड गेव इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ गिव. कवर्ड, अनकवर्ड मतलब हम किसी चीज को कवर करके रखते हैं, और कभी कभी हम बुक को अनकवर कर देते हैं. ओके चिल्ड्रन.
Now question number 4, fill in the blank. First one, Toad and Frog walked across a large field. Second number, the button was in Toad's house. Third number, the jacket with the lost button belonged to Toad. Fourth number, Toad and Frog went for a long walk. Say children, Toad and Frog walked across a large field. आपको मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया था कि टोड और फ्रॉग जब वॉक करने के लिए जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले फील्ड में जाते हैं. ओके, फील्ड दैट मीन्स फार्म, खेत में से जाते हैं. द बटन वॉज इन टोड्स हाउस. जो बटन वो लोग पूरा दिन ढूंढ के आए हैं वो बटन उनको कहाँ पे मिला? टोड के घर पे. द जैकेट था, जो जिसका बटन खो गया था, वो जैकेट किसका था? टोड का. Then Toad and Frog went for a long, मतलब टोड और फ्रॉग दोनों कहाँ गए थे? वॉकिंग के लिए. लंबी वॉक करनी थी उन दोनों को. ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव फॉरदर. क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स. ओके, टोड एंड फ्रॉग वेर एनिमीज. अब आपको पता है टोड एंड फ्रॉग क्या थे दोनों? तो दे वर बेस्ट फ्रेंड्स. एंड हियर आई राइट एनिमीज. So it's a false. Toad ran and slammed the door. True. अब देखो, टोड भागा और उसने धड़ाम से दरवाजे को पछाड़ा. ओके, तो आपको पता है कि टोड बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया था. तो इट्स अ ट्रू. फ्रॉग बिकेम वेरी एंग्री. तो इट्स अ फॉल्स. आपको पता है टोड बिकेम एंग्री एंड हियर आई राइट फ्रॉग बिकेम एंग्री. सो इट्स अ फॉल्स. टोड gave his jacket to frog. टोड ने अपना जैकेट फ्रॉग को दे दिया. इट्स अ ट्रू, क्योंकि वो जैकेट किसका था? द जैकेट वॉज बिलोंग टू टोड. सो टोड gave this jacket to frog. So it's a true. Okay children. Now question number 6, make sentence. First one, button. I saw a red thin button. अब आपको पता है बटन सबने देखा है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेरा ही सेंटेंस कॉपी करना है. आप अपने सेंटेंस खुद बनाओ और फिर लिख सकते हो. ओके चिल्ड्रन, आई सो ए रेड थिन बटन मैंने लिखा है. आप लिख सकते हो आई हैव मैनी बटन. आई हैव अ येलो बटन. ओके चिल्ड्रन. देन स्लैम्ड. आपको पता है स्लैम्ड मतलब दरवाजे को हम जोर से ऐसे पछाड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्लैम्ड. तो हियर आई राइट रिया रैन एंड स्लैम द डोर. आप ऐसा भी लिख सकते हो, I became angry and slammed the door. Beautiful. My mother looks beautiful. My sister looks beautiful. Okay, children. Then floor. I saw 2 buttons on the floor. अब यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, My floor looks clean. Okay, children. समझ में आया सबको? Now question number 7, answer in a line. First number, who went for a long walk? Answer, Toad and Frog went for a long walk. Second number, where was the button? Answer, the button was in Toad's house. Third number, who had sewed all the buttons on the jacket? Answer, Toad had sewed all the buttons on the jacket. Say children, here. आपको पेपर में क्या होते हैं, कुछ बच्चे से फिलअप अपोजिट ट्रू फॉल्स यही अटेंड करते हैं, क्वेश्चन आंसर सब छोड़ देते हैं. तो अब आप सब कुछ आपको अटेंड करना है. अब देखो, उसके लिए भी ट्रिक से, अगर मैं जब भी आपको लेसन एक्सप्लेन करती हूँ तो ऑलवेज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपको जब भी मेरा एक्सप्लेनेशन होता है वो ध्यान से सुनना है, तो आप कोई भी आंसर अपने आप लिख सकोगे. ओके चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे क्या है? हु वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक. आप सबको पता है कि वॉकिंग करने के लिए कौन गया था? टोड एंड फ्रॉग वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक. गॉट इट? नाउ सेकंड नंबर, वेयर वाज द बटन. बटन कहाँ पे मिला? सबको पता है, इन टोड्स हाउस. द बटन वाज इन टोड्स हाउस. Then third number, who had sewed all the buttons on the jacket? जैकेट पे बस बटन किसने स्टिच किए थे? Everybody knows that. Toad. Toad had sewed all the buttons on the jacket.
तो आप अगर लेसन अच्छे से सुनोगे तो आप कोई भी आंसर अपने आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर आप पेपर में लीव करके नहीं आओगे, वो भी आप अटेंड करोगे। और ये आंसर इन ए लाइन तो सबसे इजी है। ओके चिल्ड्रन, now question number 8, who said to whom and when? First number, excuse me. The sparrow said these words to toad and frog when the sparrow found a button. Second number, that is not my button. Toad said these words to frog when frog found a button. See children, here who said to whom, that means कौन बोलता है, और to whom मतलब किसे, and when then कब। तो एक्सक्यूज मी, मैंने आपको लेसन में भी बताया था एक्सक्यूज मी का मतलब क्या है। जब दो लोग बातें करते हैं तो हमें बीच में जाके नहीं बोलना है, पहले हमें एक्सक्यूज मी बोलना है, फिर ही बात करनी है। तो यहाँ पे टोड और फ्रॉग जब बात कर रहे थे तब स्पैरो को अपनी बात बोलनी थी, तो स्पैरो ने क्या बोला, एक्सक्यूज मी। तो स्पैरो सेड दिस वर्ड, किसको बोला, टू टोड एंड फ्रॉग, मतलब दोनों को बोला एक्सक्यूज मी। कब बोला था उसने एक्सक्यूज मी, क्यों काम क्या आ गया उसको, When the sparrow found a button, जब स्पैरो को एक बटन मिला तब उसको लगा कि मे बी ये टोड का होगा, इसलिए उसने बोला एक्सक्यूज मी। नाउ सेकंड नंबर, दैट इज नॉट माई बटन, ये मेरा बटन नहीं है। ये कौन बोला, टोड। टू होम, टू फ्रॉग। when frog found a button, अब ईच एंड एवरी टाइम फ्रॉग को बटन मिलते थे और टोड और दैट टाइम क्या बोलता था, दैट इज नॉट माई बटन। तो चिल्ड्रन अंडरस्टूड कैसे उसको, मतलब क्या आंसर वो करता था। ओके गॉट इट। Now let's move further. Question number 9, answer in short. One number, what kind of button did the sparrow find? Answer, the sparrow found a button with 2 holes. Second number, when did Toad notice that his button had fallen? Answer, after Toad and Frog returned from a long walk, Toad noticed that a button had fallen off his jacket. See children, what kind of button did the sparrow find? आपको मैंने बताया था कि स्पैरो को जो बटन मिला था वो बटन कैसा था। तो देन स्पैरो फाउंड अ बटन विथ 2 होल्स और टोड का बटन 4 होल्स वाला था। तो स्पैरो फाउंड अ बटन विथ 2 होल्स। सेकंड नंबर, व्हेन डिड टोड नोटिस दैट हिज बटन हैड फॉलन? आफ्टर टोड एंड फ्रॉग रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग वॉक। आपको पता है कि टोड और फ्रॉग वॉकिंग करके वापस आते हैं। जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं, टोड क्या उसकी नजर उसके जैकेट पे जाती है और उसको नोटिस होता है कि उसका एक बटन तो गिर गया है, वो जैकेट पे दिख ही नहीं रहा था। ओके गॉट इट। नाउ इट्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर इन ब्रीफ। Was Toad happy when Frog and he reached at home? Why not? अब हमारा क्वेश्चन देखो, जब फ्रॉग और टोड दोनों मॉर्निंग वॉक करके वापस आए तो टोड हैप्पी था, और नहीं तो क्यों नहीं था? तो नो, आपको पता है आंसर नो ही है, क्योंकि टोड वाज नॉट हैप्पी एंड ही वाज गेटिंग एंग्री। आपको पता है टोड वाज नॉट हैप्पी व्हेन ही रीच्ड एट होम, जब वो घर पहुंचा तो क्यों, हिज लेग्स हर्ट आफ्टर ए लॉन्ग वॉक। एक रीजन ये था कि उसके लेग्स बहुत पेन कर रहे थे। ओके, और दूसरा क्या था, तो ही वॉज अपसेट दैट ही हैड लॉस्ट वन ऑफ द बटन ऑन हिज जैकेट, और उसका जो जैकेट था उसका एक बटन लॉस्ट मतलब खो गया था। सो देयर वर 2 रीजन, उसके लेग्स हर्ट कर रहे थे और दूसरा उसके जैकेट का बटन खो गया था। ओके चिल्ड्रन, सो हियर टोड वाज नॉट हैप्पी because his legs was paining and he had lost of his button. Okay children, so अब आंसर इन ब्रीफ भी हमें छोड़ना नहीं है, ये भी हमें अटेंड करना है। ओके, लेसन अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख सकते हो। ओके, सो डोंट बी अफ्रेड। नाउ हैव अ नाइस डे। ओके चिल्ड्रन, बाय।